Okay, hey everybody, I'm going to solve this numerical. Now, this numerical is related to making of composite capacitor. Okay, I'm having a simple formula using which we can solve this type of numerical in few seconds. So, let's begin. So, first of all, let me read this numerical for you. Let's try to understand it well. A minimum number of capacitor, each of 8 microfarad and 250 volt, used to make a composite capacitor. Okay, so these numericals are related to making of composite capacitor. So of 16 microfarad at 1000 volt. Okay, so check this one. Initial capacitor, I mean the value of single capacitor is 8 microfarad. Its voltage is 250. This is the maximum voltage you can apply across the capacitor. Now we need to make a capacitor of 16 microfarad. कितने का बनाना है? 16 microfarad. This is the final capacitance at 1000 volt. So maximum voltage you can apply is 1000 volt. ठीक है ना? So how many capacitor do we need? We need to find out the number. Okay, we need to calculate the number of capacitors. Each capacitor is of 8 microfarad. How many capacitor do we need? How are we going to connect them? Okay, whether it is series or parallel. We don't need that actually. We just need the number of capacitors. Okay, so there is a simple formula using which we can easily solve these type of numericals. So let me solve it now. So this is the formula. N is equal to final voltage, initial voltage. ब्रैकेट में उसका स्क्वायर, फाइनल कैपेसिटेंस, initial capacitance. Okay, let me write it properly. Yeah, so check this one, all the values are given. ठीक है ना? फाइनल वोल्टेज कितना है? 1000. So let me write it, 1000 डिवाइडेड बाय इनिशियल वोल्टेज कितना है? 250. उसका स्क्वायर इनटू फाइनल कैपेसिटेंस कितना है? 16. इनिशियल कैपेसिटेंस कितना है? 8. दैट्स इट. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आएगा. ये तो 2 हो जाएगा. ठीक है. और ये कितना हो जाएगा? ये 4 का स्क्वायर, राइट? 4 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 का स्क्वायर बनेगा 16. यहाँ पे लिख देता हूँ. और 16/8 का 2 बना था, मीन्स आंसर आएगा 32. ओके, सो यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स इजीली. तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आया? 32, राइट? तो मैंने इसको दूसरे पेज पे सॉल्व किया था. ठीक है ना? our number is 32. So which formula do we have to use? This वाला, v final v initial उसका स्क्वायर इनटू c final c initial. तो फाइनल वैल्यू दिया है 1000 है, इनिशियल वैल्यू भी दिया है 250 ऑफ वोल्टेज. स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना? सी फाइनल कितना है? 16 एंड इनिशियल कितना है? 8. सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये जो नंबर है 4 आएगा. 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16. और ये जो नंबर है इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा. 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 32. 32 will be my answer. Okay, so using this formula we can solve these type of numericals easily within few seconds. चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर. Same. Okay, here we need to calculate the number of capacitors. Okay, this image is quite blur. Let me show you one more image of the same numerical. Yeah, this one. देखो यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ कैपेसिटर्स फाइंड आउट करने हैं. ठीक है ना? अच्छा, इनिशियल कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैरड, फाइनल कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरड. Initial voltage across each capacitor is 500 volt.
और जो कंपोसाइट कैपेसिटर है उसके अक्रॉस हमें चाहिए 3000 वोल्ट। ठीक है ना, तो सेम फार्मूला आई एम गोइंग टू यूज। आई एम नॉट रीडिंग दिस न्यूमेरिकल, ओके, डेटा मैंने रीड कर दिया है। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। क्या फार्मूला है? वी इनिशियल, एफ फॉर फाइनल, आई फॉर इनिशियल, स्क्वायर, उप्स वेट अ सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, स्क्वायर है वो, ठीक है। अच्छा, कैपेसिटेंस में सी फाइनल, सी इनिशियल, चलो वैल्यू पुटअप करते। सी वी फाइनल कितना है? 3000, और इनिशियल वोल्टेज कितना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर? 500 स्क्वायर। ना फाइनल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड है। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते, कितना आना चाहिए? 1 0 1 0 कैंसिल, 2 0 0 0 कैंसिल, 30/6, 30/5, दैट विल बी 6, और 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी 36, और 2/1 का क्या बनेगा? 2। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 72। 72 capacitors we required. Okay, so what is the correct answer in this case? C. 72 component capacitors are required to make a composite capacitor of 2 microfarad having 3000 volt. चलो now let's solve this numerical. Okay, ये वाला थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। All those formula is same, all the datas are similar. Okay, but here, well, there is a minute difference. Okay, I'll show you here only. चलो पहले इसको रीड कर लेते। चलो रीड कर लेते। कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड इज रिक्वायर्ड, तो ये फाइनल कैपेसिटेंस है, इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.0 किलो वोल्ट, मीन्स 1000 kV है। लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर्स आर अवेलेबल, सो इनिशियल कैपेसिटर एक्चुअली 1 माइक्रोफैराड है। हमें बनाना कितना है? 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर हमें बनाना है, ठीक है ना। और ये जो छोटे कैपेसिटर्स है ऑफ 1 माइक्रोफैराड, उनका मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 300 वोल्ट। अच्छा, 2 माइक्रोफैराड का मैक्सिमम वोल्टेज कितना इन्होंने मेंशन किया है? 1.0 किलो वोल्ट, मीन्स 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, ठीक है ना। इनिशियल कैपेसिटेंस इज गिवन, फाइनल कैपेसिटेंस इज गिवन, initial voltage is given, final voltage is given, so let's calculate it now. One more, या चलो ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। v फाइनल, v इनिशियल, उसका स्क्वायर, इनटू c फाइनल, c इनिशियल, इजंट इट। चलो ठीक है, वैल्यू पुटअप करते हैं। फाइनल कितना है? 1000, वो हमेशा बढ़ा ही रहता है, ठीक है ना। 1 किलो मीन्स 1000 हो गया। इनिशियल कितना है? 300 वोल्ट है, वो तो हमेशा कम ही रहेगा, स्क्वायर, फाइनल 2, बड़ा रहेगा, इनिशियल 1 माइक्रोफैरेड। चलो ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ये जो 1000/3 है ना, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 10/3, तो 3.3 बनेगा, राइट। 3.3 विल बी माई आंसर, लेकिन हमें 3.3 नहीं लेना है, ठीक है ना। 3.3 नहीं लेना, उसका जो नेक्स्ट नंबर है राउंड फिगर 4 लेना है। ओके, दिस इज नॉट, यहाँ पे हम राउंड फिगर नहीं कर रहे बेसिकली, यहाँ पे हम हमें यू नो fraction नहीं चाहिए, means 2.5, 3.5, because we are calculating for the number of capacitors, so it should be a complete number. So 3.3 आएगा, मैं उसको 4 लूँगा, ठीक है ना। तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, और ये कितना है? 2/1, तो 2 ही बनेगा, राइट। तो मेरा आंसर आ जाएगा 32। तो ये वाला जो डिवीज़न आ रहा था वो 3/3 आएगा, 10 ÷ 3, सो उसको हमें 4 लेना है, ठीक है ना, बिकॉज हियर वी आर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। So that was the small difference. Okay, in such cases if you are getting number in decimals,
सो उसकी जो नेक्स्ट नंबर है उसको उस पर राउंड फिगर करना है, ठीक है ना। सो दिस वाज द माइन्यूट डिफरेंस इन दिस केस ऑफ न्यूमेरिकल्स। चलो लेट मी गो बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 32, ठीक है ना। सो ये थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस था। 1000 को अगर मैं 300 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3.3। उसका हमें नेक्स्ट नंबर लेना है 4 और उसको स्क्वायर करना है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर टर्म आता है। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट 32। ओके, सो using this formula we can easily calculate, I mean we can easily solve these type of numericals. Chalo, now so far we have been solving the numericals related to capacitor. Now this numerical is from current electricity. Okay, current electricity. Now we are moving on to current electricity. So far हमने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से थे, obviously related to capacitors. Now similar type of numericals are there in our current electricity as well. So let me read this numerical for you. देखो क्या बोला यहाँ पे, you are given several identical resistance each of 10 resistance ohm capable of carrying maximum current of 1 ampere. It is required to make one suitable combination of these resistance of 5 ohm which can carry current of 4 एम्पियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, पीछे वाले अर्लियर क्वेश्चंस में हमें कैपेसिटर दिया रहता था, ओके, लो वैल्यू का, और हमें कंपोसाइट कैपेसिटर हाई वैल्यू का बनाना था। इसमें हमें रजिस्टर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। नाउ यही डिफरेंस है ओनली, द ओनली डिफरेंस इज दिस इज अबाउट रजिस्टर्स। सो देखो इनिशियल रजिस्टर्स कितना है, 10। इनिशियल कितना है, 10। फाइनल कितना बनाना है, 5 का। फाइनल वैल्यू है 5। अच्छा, इनिशियल वोल्टेज देखो हर एक के ऊपर 1 एम्पियर जाता है। इनिशियल करंट 1 एम्पियर, वहाँ पे वोल्टेज जाता था, यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है ना। फाइनल करंट कितना है, 4 एम्पियर। सो वी हैव टू यूज सिमिलर फार्मूला, एन इज इक्वल टू, ना वहाँ पे हम वोल्टेज यूज करते थे, यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है ना। आई एफ आई इनिशियल स्क्वायर इंटू आर फाइनल, वहाँ पे कैपेसिटर आता था, यहाँ पे रजिस्टर आ रहा है, आर इनिशियल, दैट्स इट। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आर फाइनल कितना है, 5। आर इनिशियल कितना है, ओ सॉरी, वेट अ सेकेंड, मैंने रॉन्ग वैल्यू लिख दिया। आई फाइनल 4 है, राइट, सो 4 लिखता हूँ। आई इनिशियल 1 है, उसका स्क्वायर। आर फाइनल कितना है, 5 ओम चाहिए ना हमें, चलो ठीक है। और आर इनिशियल कितना था, 10। दैट्स इट। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मुझे मेरा नंबर ऑफ कैपेसिटर मिल जाएगा। तो मैं ये वैल्यूज को इरेज कर देता हूँ, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है ना। तो देखो ये इजी है, इजीली वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स विद इन फ्यू सेकंड ओनली। तो ये कितना हो जाएगा, 16, और 5/10 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। So 16/2, that will be 8, isn't it? So 8 number of registers we require to make composite register of 5 ohm. So let me go back to the original question. So my answer is 8. Okay. So the only difference was here we are talking about resistors. In electrostatics we talk about capacitors. Formula is pretty much same. There it was like V final divided by V initial square into C final C initial. ठीक है ना, pretty much similar formula, only the difference is of resistor and current. So I hope you have understood. Okay, using this formula you can easily solve these type of numericals. Thank you very much. Okay, so this numerical is homework for you. All these numericals are regarding composite capacitors. So this is the formula, V final V initial square into C final C initial
Okay, all four values are given. You just need to put it in the formula and calculate the minimum number of capacitor required to make a composite capacitor. Okay, I hope you have understood. This is a shortcut trick. Okay, thank you very much.